Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also. That will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड पैसा पोर्टल एंड पीएम स्वनिधि, एक ये पोर्टल. तो दो पोर्टल याद रखेंगे, एक तो हो गया पैसा पोर्टल, दूसरा हो गया पीएम स्वनिधि पोर्टल. ये दो पोर्टल लॉन्च किए गए अभी, किसके द्वारा ये पूछा जा रहा है. तो कौन रहेंगे, किनके द्वारा लॉन्च किया गया. ये हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. पैसा पोर्टल क्या है, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस स्कीम, करेक्ट, पहला पोर्टल. दूसरा क्या है, पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल, जो कि है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पोर्टल. अब देखो, पोर्टल और डैशबोर्ड क्या होते हैं. पोर्टल होता है आपका एक वेबसाइट, राइट, और डैशबोर्ड क्या होता है. डैशबोर्ड होता है जब आप डाटा को लेके उसका एनालिसिस करते हो और उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाते हो सामने, ताकि जो भी मिनिस्टर्स हैं वो प्रॉपर डिसीजन ले सकें. इसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड. ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ये लॉन्च किए गए थे दोनों पोर्टल. नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने मैंडेट कर दिया है मशीन टू मशीन एंड डब्ल्यू पेन एंड डब्ल्यू लैन इनको रजिस्टर करने के लिए इन देयर बिजनेस. मतलब जो ये हमारे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, उनको बोला गया कि आप रजिस्टर कर लीजिए. अब कहाँ पर, सरल संचार पोर्टल पे, करेक्ट. और ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कब तक हो जानी चाहिए, 31 मार्च 2024 तक आप इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को कंप्लीट कर लो. फिर इसी के साथ साथ बताओ, एक फार्मा पार्क सेटअप किया जा रहा है, कहाँ पर, यूपी में. फिर एक गंगा सागर मेला की बात करें, गंगा सागर मेला कहाँ पर स्टार्ट हुए, वेस्ट बंगाल में. नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन का आम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो इन्होंने अभी फूड प्राइस इंडेक्स को रिलीज किया दिसंबर में. इनके हिसाब से 2023 में जो फूड प्राइस इंडेक्स था 118.5 पॉइंट्स पे था. वहीं पे 2022 की बात करें लास्ट ईयर की, तो वो 130 पॉइंट पर था, करेक्ट, 130.4 टू बी एग्जैक्ट. तो पूछा जा रहा है कि ये जो डिफरेंस आया है कितना परसेंट लोअर है लास्ट ईयर से, तो 10.1% लोअर रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ लास्ट ईयर. फिर इसी के साथ बताओ, इंडिया अभी किस कंट्री के साथ मिलके एक 20 करोड़ रुपए का स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है. तो इंडिया किस कंट्री के साथ मिलके ये स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कर रहा है, तो वो है मॉरिशियस, राइट. नेक्स्ट, इन जनवरी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सोल्ड कर दिया अपना ड्यूल ट्रांच ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड वैल्यू विद अ मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स एंड 10 ईयर्स. तो अब याद रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट लाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए
ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए यहाँ पे 2 बॉन्ड सेल किए। एक बॉन्ड है 3 साल का, दूसरा बॉन्ड है 10 साल का। 3 साल वाला बॉन्ड 2026 में मैच्योर होगा और जो 10 साल वाला बॉन्ड है वो आपका 2034 में, दोनों जनवरी मंथ में मैच्योर होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो बॉन्ड सेल किए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, कितने अमाउंट के ये बॉन्ड रहेंगे जो ये सेल किए गए हैं। तो ये जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी ज़रा बताओ। एक चीज़ करेक्ट कर लेंगे, 2027 में ये मैच्योर होगा, तो कितनी वैल्यू रहेगी, $5 बिलियन यहाँ पे रेज किए गए हैं बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन दीज बॉन्ड्स। नेक्स्ट, शेख हसीना, ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ की, बांग्लादेश की, राइट। 5th टर्म के लिए इनको रीइलेक्ट कर लिया गया है और चौथी कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए यहाँ पे ये सेलेक्ट की गई हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, राइट। चौथा कॉन्जिक्यूटिव है और 5वां टर्म रहेगा इनका। फिर आप इनके बारे में याद रखेंगे, इनकी बेटी भी है एक, उनके बारे में बताओ, उनका नाम बताओ, और वो भी एक पोजीशन पे सेलेक्ट की गई थी अभी रिसेंटली, वो पोजीशन भी बताओ कौन सी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो सीईओ अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली वो है रघुराम अय्यर। मार्क करके चलेंगे इनको, ठीक है। रघुराम अय्यर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईओए। इससे पहले जो भी काम संभाला जाता था आईओए का, कल्याण चौबे जी के द्वारा संभाला जाता था। ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड ये प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। और फुटबॉल से हमें याद है कि फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए इंडिया में किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एक्टर हैं वो, कौन है वो, कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट, which country has recently won United Cup 2024 title by defeating the Poland tennis team? पोलैंड टेनिस टीम को अभी फाइनल्स में किन्होंने हरा दिया, जर्मनी ने, राइट। जर्मनी ने इनको फाइनल्स में हरा दिया। जो फाइनल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, सिडनी में हुआ था। सिडनी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, राइट। ये यूनाइटेड कप का था 2nd एडिशन, ठीक है, मार्क करेंगे 2nd एडिशन था इसका, राइट। और इन्होंने अभी, जर्मनी ने पोलैंड को फाइनल में हरा दिया। नेक्स्ट, मारियो लोबो जोगैलो, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल प्लेयर है 4 बार, इनका रिसेंटली निधन हो गया, तो ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं, राइट, ब्राज़ील से। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द अवार्ड ऑफ पोलैंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023। तो पोलैंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द 2023 कौन रहेंगी, वो है ईगा स्वातिक। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो ये टेनिस से बिलोंग करती हैं, ठीक है। फिर काला उत्सव, काला उत्सव, इसकी सेरेमनी को किन्होंने अटेंड किया था, तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनके द्वारा अटेंड किया गया था। फिर एक क्वेश्चन आता है योग्याश्री, योग्याश्री ये SC ST स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, किस स्टेट के द्वारा, वेस्ट बंगाल स्टेट के द्वारा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को कौन होस्ट करेगा 2024 में, इंडिया होस्ट करेगा, राइट। कब, 2024 में, जुलाई में। नेक्स्ट, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई CBRE इंडिया रिसर्च, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया इंडिया में जो MSME है ना, वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं 17%, राइट। यही क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि 17% MSME इंडिया के सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, जो कि है 17%। दूसरी पोजीशन पे आ जाता है तमिलनाडु विद 10%, करेक्ट। और फिर तमिलनाडु के बाद भी अगर देखें 3rd पोजीशन पे आ जाता है यूपी विद जस्ट 9%, ठीक है। ये जो डाटा था CBRE इंडिया रिसर्च के द्वारा कब रिलीज किया गया, CREDAI क्रेडाई की नेशनल न्यू इंडिया समिट हुई थी अभी 2024 की, इसका 5th एडिशन था, राइट, वाराणसी यूपी में। इसके दौरान इस डाटा को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, अभी SBI का इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया कि जो इंडिया में इनकम इक्वेलिटी है ना, इंडिविजुअल इनकम इनक्वालिटी जो है वो घट गई है 0.472 पॉइंट से 0.402 पॉइंट तक। और ये जो डाटा है फिस्कल ईयर 2014 से लेके फिस्कल ईयर 22 के लिए ये डाटा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्ट करना है, राइट। तो उनकी जो पहले रिक्वायरमेंट होती थी 100 करोड़ रुपए होती थी, अभी 100 करोड़ को कितनी कर दिया गया है, तो 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, राइट। मार्क करेंगे, अगर किसी को पेमेंट बैंक को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो उनको 100 करोड़ की बजाय अब 200 करोड़ रुपए की कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। इवन अभी हम देखेंगे एसबीआई को आरबीआई ने बोला कि जो इनकी होल्डिंग्स है ना उनको इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की गई। आपने तभी देखा होगा एसबीआई ने अभी रिसेंटली जो एफडीज हैं उन पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, जनवरी में नासा के द्वारा अभी रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया गया जिसपे 5 पेलोड्स को स्पेस में भेजा गया। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का वुल्कन सेंटोर लॉन्च व्हीकल, इसके मदद से इस 5 पेलोड्स को स्पेस में भेजा गया फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस मिशन के अंडर इसको स्पेस में भेजा गया, तो PM1 पेरेग्रीन मिशन 1 के अंडर इन 5 पेलोड को नासा के द्वारा स्पेस में भेजा गया। नेक्स्ट, फ्रांस बैकनबॉर्ड, ये अभी रिसेंटली किस कंट्री से हैं जिनका निधन हो गया, और ये 2 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल प्लेयर हैं। तो फ्रांस बैकनबॉर्ड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपका जर्मनी से। नेक्स्ट, एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं कब, राइट। एवरी ईयर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है बाइनली, हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। पूछा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस जिसको हम NRI डे के नाम से भी जानते हैं कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 17वां एडिशन इसका 9 जनवरी 2023 में था। 18वां एडिशन 9 जनवरी 2025 में होगा, 24 में नहीं, क्योंकि 2 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे 18वां कब, 2025 में ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा इंडिया के बाहर रहता है और वो इंडिया की ग्रोथ में जो हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो बाहर से पैसे कमा के इंडिया भेजता है, उसको यहाँ पे सम्मान देने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन वाज द अर्थ रोटेशन डे 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब, तो अर्थ रोटेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली चूजन बाय अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी एज द ऑफिशियल मैप फॉर अयोध्या सिटी इन जनवरी 2024। देखो अयोध्या सिटी को डेवलप करने की बात की जा रही है, डेफिनेटली अब हम सुन रहे हैं, राइट। यूपी में है अयोध्या सिटी, तो यहाँ पे मैप्स डेवलप किए जाएंगे, हम डेवलप करेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे एरिया को डेवलप करना है। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखते हुए डेवलप करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो न्यू टेक यूज़ होगा वो इस सिटी को डेवलप करने में यूज़ किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि किस कंपनी को चूज़ किया अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कि इनका ऑफिशियल मैप डेवलप करें, तो वो है जेनेसिस इंटरनेशनल, राइट, जेनेसिस इंटरनेशनल। और ये इनका एक 3D ट्विन मैप भी डेवलप करेगा, 3D मैप डेवलप करेंगे ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिल सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक 4 साल का अग्रीमेंट 2023 से 27 के लिए फॉर मीडिया राइट्स विद द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने या फिर के साथ वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये 4 साल का अग्रीमेंट साइन किया है, करेक्ट, फॉर मीडिया राइट्स। नेक्स्ट, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, इन्होंने कमिट किया कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। रिवर क्रूज टूरिज्म को, राइट, क्रूज शिप्स होते हैं, राइट, रिवर्स में क्रूज शिप्स को चला जाए ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, इसीलिए यहाँ पर IWDC जो कि है इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, इन्होंने 45,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की। नेक्स्ट, इंडिया इज सेट टू चेयर एंड होस्ट विच सेशन ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई 2024 इन दिल्ली। अभी हमने देखा था, अब पूछा गया कि यहाँ पे इसका कौन सा सेशन होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, तो वो 46वां सेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया NPCI के साथ ताकि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि हमारा UPI होता है, UPI एनेबल्ड समान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर अभी रिसेंटली NPCI के साथ टाइप करा ताकि एक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड जो कि UPI एनेबल्ड होगा वो लॉन्च किया जाएगा फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो प्राइम मिनिस्टर वो भी यंगेस्ट फ्रांस के कौन बने हैं, वो है गैब्रियल
एटल। कितने के हैं? 34 साल के हैं ये। किनको रिप्लेस करेंगे ये? एलिजाबेथ बॉर्न को टू बी द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट, और याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन, ये अभी रिसेंटली इंडिया में भी आएंगे एज अ चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। नेक्स्ट, नेम द असॉल्ट राइफल दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ फॉर इंडियन आर्मी। तो उसका नाम क्या रहेगा? उग्राम। उग्राम वो असॉल्ट राइफल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च की गई फॉर इंडियन आर्मी, करेक्ट। एआरडीई के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये पुणे महाराष्ट्र में ही है, राइट। इनके द्वारा डेवलप किया गया था। 500 मीटर की यहाँ पर इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेट टीम वन ओडीआई सीरीज अंडर द कैप्टनशिप ऑफ डैश एंड ये था टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, दिसंबर 2023 से जनवरी 2023 के बीच में। तो यहाँ पे वनडे इंटरनेशनल सीरीज तो हमने जीत ली, लेकिन T20 इंटरनेशनल एंड आपकी टेस्ट सीरीज ये क्या रही? ड्रॉ। ठीक, तो पूछा जा रहा है जो ओडीआई सीरीज जीती है किसकी कैप्टनशिप के अंडर हमने जीती है? तो ये केएल राहुल की कैप्टनशिप के अंडर हमने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड हिंदी डे अक्रॉस द ग्लोब हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ग्लोबली एंड इसके यूसेज को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ द फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट फॉर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर टू डैश ईयर्स। तो पहले 5 साल था, इसको बढ़ा के अब 10 साल कर दिया टेन्योर फॉर द फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट फॉर द नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली एक्सक्लूड किया रेड शिपिंग रूट को फ्रॉम स्टैंडर्ड मरीन इंश्योरेंस? देखो, सबसे पहले चीज़ याद रखेंगे, जो आपके शिप्स होते हैं ना, ये बड़े बड़े शिप्स जहाँ पर आप अपने कार्गो को लेके जाते हैं, तो ये जो शिप्स होते हैं ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, राइट। और ये जो कार्गो होता है ये भी एक्सपेंसिव होता है, तो इनका ना इंश्योरेंस किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के। जैसे हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी इनका इंश्योरेंस करती है कि कल को ये डूब जाते हैं या फिर कुछ भी नुकसान होता है तो इन कंपनीज को जो ये ओन करती हैं वो इनको इंश्योरेंस क्लेम कर सके, राइट। क्योंकि जैसे अगर हम गाड़ी भी ठीक कराते हैं, जैसे हमारा कार इंश्योरेंस या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलो, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं ना ताकि एकदम बहुत बड़ा खर्चा ना आ जाए आपका, वो इंश्योरेंस कंपनी देख ले। सिमिलरली ये जो शिप्स होते हैं, ये कार्गो होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट। ये अगर खराब हो जाए या कोई भी दिक्कत आ जाए या डूब जाए या कुछ भी दिक्कत हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे ध्यान रखे, राइट, क्योंकि वरना ये बहुत महंगा पड़ेगा। सिमिलरली इसीलिए अभी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने रेड सी शिपिंग रूट पे जो भी आपके कार्गो चल रहा है, जो भी ट्रेड हो रहा है, उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड देने से मना कर दिया है? तो वो है टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस। रीजन बीइंग कि अभी हम देख रहे हैं रिबेल्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए जा रहे हैं, वहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, ट्रेड को वहाँ पर रोका जा रहा है, करेक्ट। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए इस कंपनी ने बोला कि हम वहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे उस रूट पर, जो भी अपने शिप्स का या भी जो भी ये वेसल्स हैं इनका इंश्योरेंस कराना चाहता है, उनका इंश्योरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के साथ टाई अप करा टू लॉन्च अ 5th ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम छिलका लेक में, जो एक रामसर साइट है। किस स्टेट में? तो उड़ीसा में है ये आपकी छिलका लेक, ये एक रामसर साइट है। एंड यहाँ पे 5वां ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया अंडर अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा मिलकर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने नोटिफाई किया रिवाइज्ड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल्स को अंडर शेड्यूल एम, करेक्ट। तो पूछा जा रहा है दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स ऑफ डैश ईयर ऑफ 1945 इन द गैजेट ऑफ इंडिया। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 रहेगा। ये जो शेड्यूल एम है बेसिकली ये चेंज किया गया है यहाँ पे, एंड गुड्स या फिर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए। रीजन बीइंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होगी तो जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी अच्छी आएगी, एंड इंटरनेशनल मार्केट में जब हमें एक्सपोर्ट करना होता है तो हमें जो क्वालिटी चाहिए होती है प्रोडक्ट की वो टॉप नॉच होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट को आगे से एक्सेप्ट किया जाएगा एंड तभी ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर नॉमिनेटेड फॉर वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम? ये वो पहली 3 सिटीज़ बनी है, इंदौर, उदयपुर एंड भोपाल, जिनको अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया फॉर वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम अंडर रामसर कन्वेंशन, करेक्ट। और याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, एंड ये पहली 3 सिटीज़ है जिनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया इन द ऑनगोइंग डैश एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर
एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 जो कि गुआम यूएसए में हुई। तो P8I एयरक्राफ्ट, राइट, ये इंडियन नेवी का है एंड इन्होंने कौन सा एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन में पार्टिसिपेट किया? तो ये 4th एडिशन रहेगा ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो कि गुआम यूएसए में हुई। इसमें 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रोथ लिक्विड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड टू ऑफर अ ग्रोथ नेट एसेट वैल्यू? तो ग्रोथ एनएवी ऑफर करने के लिए किस कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रोथ लिक्विड ईटीएफ? तो वो लॉन्च किया गया ज़ेरोधा फंड हाउस के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑफ स्लो डाउन, करेक्ट। और हम देख रहे हैं 3rd क्या है, क्योंकि पिछले कोरोना हुआ, फिर हमें वॉर स्टार्ट हो गई, फिर अलग अलग सिचुएशन बन रही, फिर डॉलर का हम देख रहे हैं डिनोमिनेशन, डॉलर जो है उसकी पावर कम होती जा रही है। 10th अभी रैंक करा इन द ब्रिक्स इंडेक्स में, ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों से हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ है ना वर्ल्ड की वो हैम्पर हो रही है, राइट। तो अभी जो डाटा रिलीज किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट रहेगी ना वो 2.4% की रहेगी इन 2024। 2025 में 2.7% से वर्ल्ड ग्रो करेगा, राइट। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बिम्स्टेक? बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल पहले फर्स्ट इंडियन बने, राइट। कौन रहेंगे वो जिन्होंने होल्ड की इस पोजीशन को? वो है इंदिरा मानी पांडे, पहले इंडियन और 4th सेक्रेटरी जनरल बने हैं ये बिम्स्टेक के, वो है इंदिरा मानी पांडे। कितने साल के लिए? 3 साल का इनका टर्म रहेगा। नेक्स्ट, और ये किनको रिप्लेस करेंगे? तेंजिन लेकपाल, ये भूटान के थे, इन्होंने इनको रिप्लेस किया। नेक्स्ट, सीसीआई ने अभी अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ द रिमेनिंग 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन सिग्नेट एक्सीपिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट, बाय आईएमसीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो 30% जो बचा हुआ था उसको एक्वायर करने की बात की गई। नेक्स्ट, इन जनवरी डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मैप ऑल 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन मैपल्स। तो याद रखेंगे इन जनवरी 2024 पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने सारे 784 डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सीडेंट, नॉट डिस्ट्रिक्ट, 784 प्रोन एक्सीडेंट स्पोर्ट्स को, यहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उनको मार्क करा इनके मोबाइल एप्लीकेशन मैपल्स पे, ठीक है। ये मैपल्स सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा अंडर मैप माई इंडिया के अंडर लॉन्च किया गया। तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मैप माई इंडिया के साथ टाइप करा ताकि इन 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स को मार्क किया जा सके मैपल्स पर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी सेक्शन किया कितना अमाउंट अंडर द सेकेंड फेज ऑफ फेम 2 प्रोग्राम? तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए फॉर द सेकेंड फेज ऑफ फेम प्रोग्राम। फेम क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया गया जनवरी 2024 में। यहाँ पे जो इंडियन पासपोर्ट्स हैं उनकी क्या रैंक रहेगी? तो इंडिया के पासपोर्ट की रैंक रही 80। इंडिया ने ये उज्बेकिस्तान के साथ इस पोजीशन को शेयर किया एंड इंडिया 62 कंट्रीज में वीज़ा फ्री जा सकता है, दैट मीन्स वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे उनको मिल जाएगा। टॉप पे रही 6 कंट्रीज, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 6 कंट्रीज जो है आपकी जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द MSCI एमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स? तो एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, MSCI के एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही सेकंड। फर्स्ट पे रहा चाइना, फिर आ गया हमारा इंडिया, थर्ड पोजीशन पे आ गया ताइवान, ठीक है, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस कंट्री के DSTL एंड इंडिया के DRDO ने टाई अप करा ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके डिफेंस सेक्टर में? तो ये जो DSTL है ना ये यूके का है, तो हम कह सकते हैं यूके एंड इंडिया के बीच में टाई अप हुआ ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके इन डिफेंस सेक्टर। और यूके का है DSTL, DSTL क्या है? डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, एंड इंडिया का DRDO जो कि है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट, नेम द पेमेंट बैंक जिन्होंने भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ टाइप किया टू ट्रांसफॉर्म द फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ रूरल राजस्थान। राजस्थान के रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए, फाइनेंशियली वहाँ पे डेवलपमेंट लाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फाइनेंस के किस पेमेंट बैंक ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ टाइप किया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ टाइप किया। ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहेगा, ठीक है, जिंक का। नेक्स्ट, which of the following personalities did not receive the Tenzing Norgay नेशनल एडवेंचर अवार्ड? तो टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से किनको सम्मानित नहीं किया गया? वो है आर्यन सिंह डाडलिया। बाकी चारों को यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, इन जनवरी 2024 इंडियन नेवी ने रिसीव किया दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये पहला इंडिजीनियसली मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल रहेगा। मेल क्या है? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, राइट, एक तरीके का ड्रोन ही कह सकते हैं हम इसको। इसको किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, दृष्टि 10 स्टार लाइनर को। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। तो पूछा जाएगा किसके द्वारा डेवलप किया गया है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट, इन जनवरी नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज प्रोजेक्ट, इन्होंने इंट्रोड्यूस की एक मोबाइल एप्लीकेशन रिपोर्ट फिश डिजीज के नाम से, जो ट्रैक करती है एंड मॉनिटर करती है फिश डिजीज को अक्रॉस इंडिया। पूछा जा रहा है ये रिपोर्ट फिश डिजीज जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो ये डेवलप की गई है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन वाज नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया। इस बार हमने 2024 में 160, और एक चीज़ और पहले याद रखेंगे, नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। एंड इस बार 2024 में 161st बर्थ एनिवर्सरी थी स्वामी विवेकानंद जी की। नेक्स्ट आ जाता है फिर एक चीज़ और याद रखेंगे, अभी रिसेंटली ऑन नेशनल यूथ डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया नासिक महाराष्ट्र में। एंड ये जो फेस्टिवल होगा 12 से लेकर 16 जनवरी 2024 के बीच में होगा, मतलब हो चुका है। नेक्स्ट, इन जनवरी डैश कंपनी ने सिक्योर किया द कवेटेड फर्स्ट पोजीशन इन S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2023 इन मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर। तो किस कंपनी ने सिक्योर किया कवेटेड फर्स्ट पोजीशन इन S&P कॉर्पोरेट ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट? तो कंपनी रहेगी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय AMFI, जो कि है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM क्रॉस कर गया है बाय 50 लाख करोड़ रुपीस। मतलब जो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है दिसंबर 2023 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने 50 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन आर्मी वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, और यार इंडियन आर्मी हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन 2023 को डिक्लेयर किया गया बाय इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, इन जनवरी डैश बिकेम द फर्स्ट ISO सर्टिफाइड, जो कि सर्टिफिकेशन है IEC 27001 सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ISO IEC 27001 सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन पहली कौन सी बनी इंडिया में? वो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, करेक्ट। UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको सम्मानित किया ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक MOU मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ ताकि लोन्स प्रोवाइड किए जा सके टू रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ टाइप किया ताकि लोन्स प्रोवाइड कराए जा सकें टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे SBI ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था स्वयं सिद्धा। ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, एंड इसके अंडर यहाँ पे 5 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि अपने बिजनेसेस को ये वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ग्रो कर सकें। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने लॉन्च किया स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम टू मोबिलाइज फंड्स फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम
लॉन्च की गई है, राइट। जो कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ से जनरेट की जाएगी या जो फंड्स जनरेट किए जाएंगे इस फिक्स डिपॉजिट से, उसको लॉन्च किया जाएगा एंड उसको इन्वेस्ट किया जाएगा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट, एज पर द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024, ये रिपोर्ट रिलीज की गई आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जनवरी 2024 में। एंड जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इससे हमने इस रिपोर्ट के अंदर देखा कि जो आईएलओ ने डाटा रिलीज किया, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2023 में 5.1% का, वो बढ़कर अब हो गया है 5.2% 2022 से 2024 में, राइट। आई करेक्ट, 2023 से 2024 में। मतलब यहाँ पे हमने देखा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 0.1% से ग्रो कर गई एंड 0.1% आ जाता है 2 मिलियन के करीब, राइट। 2 मिलियन का मतलब 20 लाख लोग, राइट। तो 5.2% की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली हमें 2024 में। 0.1% का इंक्रीज देखा, मतलब 20 लाख ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए 2024 में। नेक्स्ट, टिम साउथी, ये किस कंट्री से हैं जो कि पहले बॉलर बन गए टू रीच 150 विकेट्स इन 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो टिम साउथी ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं एंड ये पहले बॉलर बन गए जिन्होंने 150 विकेट के टारगेट को अचीव किया T20 इंटरनेशनल में। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी मंथ। सेशन पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट मैं ला सकूं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। Which team has won Vijay Hazare Trophy Final 2023-24 by defeating Rajasthan men's cricket team in the finals in December? तो हरियाणा ने यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। 21वां एडिशन था ये विजय हजारे ट्रॉफी का। 23 नवंबर से 16 दिसंबर तक था। 135 मैच यहाँ पर हमें खेले गए एंड ये पहली बार हुआ ऐसा कि हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। एंड किसको हराया इन्होंने फाइनल्स में? राजस्थान को। Next, which company has recently signed MOU with IIT Roorkee and University of Birmingham to establish a collaborative partnership in the field of skill development for railway signaling and development of digital twin for railway operation and maintenance respectively? तो किसने यहाँ पे टाई अप किया? रुड़की एंड यूनिवर्सिटी ऑफ IIT रुड़की एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगहम के साथ। क्या नाम रहेगा उस कंपनी का? वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस किरण रिजिजू, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला विंटर एक्सपीडिशन टू आर्कटिक, राइट, टू एक्सपेंड इंडिया साइंटिफिक एक्टिविटीज टू द अदर क्रिटिकल एंड कोर आर्कटिक रेल्म्स। मतलब वहां पर अपना इंडिया का पहला विंटर एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। 4 साइंटिस्ट रहेंगे यहाँ पर जो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस मिशन के अंडर या किस स्कीम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको अप्रूव करा। तो मिशन क्या रहेगा, वो कौन सी स्कीम है? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च के अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ये एक्सपीडिशन को अप्रूव किया गया, जो कि इंडिया का पहला विंटर एक्सपीडिशन रहेगा टू आर्कटिक। नेक्स्ट है, इन दिसंबर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डैश हु वन द 1987 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स पास्ड अवे। तो कौन है वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनको 1987 में नोबेल प्राइज मिला था, जिनका भी रिसेंट निधन हो गया? तो वह रॉबर्ट मेर्टन सोलो, करेक्ट। इनका निधन हो गया है। 1987 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, जो कि 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 1979 से लेके 1980 तक ये यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे थे, प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के एंड ये 5वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। पूछा जा रहा है नेशनल फार्मर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है या फिर किसान दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर साल 23 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड 2023 में हमने इनकी 121वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी थी। पहली बार किसान दिवस कब ऑब्जर्व किया गया था? किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर 2001 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। Next, which of the following banks in India along with the government has recently been working for the fund framework for green hydrogen प्रोजेक्ट्स? तो कौन से बैंक वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि ये फंड फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए? HDFC बैंक, SBI एंड ICICI बैंक। ये तीनों बैंक यहाँ पे वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि एक फंड फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए।
According to Migration and Development Brief 39, leveraging diaspora finances for private capital mobilization released by World Bank in December, Dash country has topped the remittance chart with an estimated inward remittance flow of $125 billion in 2023. तो सबसे पहले याद रखो, जो रेमिटेंस होती है ना, प्रेमिटेंस होता है पैसे का आना जाना, इनवर्ड रेमिटेंस होता है जब दूसरी कंट्री से पैसा इंडिया में आ रहा है, और आउटवर्ड रेमिटेंस होता है जब इंडिया से पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है। ठीक है, तो इनवर्ड रेमिटेंस में भी टॉप करने वाली कंट्री कौन बन गई है, वो है हमारी इंडिया विद अ रिकॉर्ड $125 बिलियन, मतलब इतना पैसा बाहर के लोगों ने इंडिया में भेजा। राइट, तो ऑप्शन 5 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, इन दिसंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया, कितने अमाउंट के लिए, फॉर जैपनीज येन लोन टू कंटिन्यू फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर को। तो कितने अमाउंट का था, 37 बिलियन जैपनीज येन का ये लोन अग्रीमेंट था। राइट, और ऑलमोस्ट ये कन्वर्ट करें तो $250 मिलियन का ये लोन अग्रीमेंट था, ताकि दिल्ली मेरठ का जो RRTS सिस्टम है उसको डेवलप किया जा सके, जिससे कनेक्टिविटी और बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो वो रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने कोलैबोरेट किया IOCL के साथ, ताकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, जिसका नाम रहेगा इंडिया ऑयल कोटक क्रेडिट कार्ड, एंड ये रुपए से पावर्ड रहेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इट्स 2-year टर्म। फॉलोइंग दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने नॉमिनेट किया कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को टू रिप्रेजेंट वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो 31 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, जिसमें आपके फाउंडर भी रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे इन्वेस्टर्स की तरफ से, आपके इंक्यूबेटर्स की तरफ से एंड एक्सेलरेटर्स की तरफ से। इसमें आप देखेंगे कुणाल बैल जो को फाउंडर है स्नैपडील के, वो हैं। वाइस चेयरमैन ऑफ इन्फोएज नितिन कामत, फाउंडर ऑफ CEO ज़रोधा, ये भी रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। बिस्लरी क्या है, ये वाटर ब्रांड है ग्लोबल। राइट, तो दीपिका पादुकोण को अभी यहाँ पर इनका बिस्लरी का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। Next, when was the National Mathematics Day observed across India to commemorate birth anniversary of the Indian mathematician S. Ramanujan? तो S. रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी कब होती है, 22 दिसंबर को, और इस साल 2023 में हमने उनकी 136वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी। राइट, तो 22 दिसंबर को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे इन द बर्थ एंड इन द मेमोरी ऑफ S. रामानुजन। करेक्ट, पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था नेशनल मैथमेटिक्स डे, 2012 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम्पशन ऑन मसूर दाल जो लेंटिस है, कब तक इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो याद रखेंगे 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक जो मसूर दाल होती है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसका एग्जाम्पशन लगा दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू एम्पावर रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्टिशंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्टिशंस को एम्पावर करने के लिए अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ टाइप किया, जियो मार्ट के साथ। यहाँ पर इन आर्टिशंस को स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कैसे अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर सकें, कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकें एंड कैसे उसको डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट ऑडियंस को बेच सकें। नेक्स्ट, किस बैंक ने और ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रूव किया लोन ऑफ $300 मिलियन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को ग्रो कर सकें। तो याद रखेंगे यहाँ पर ये जो अमाउंट है $300 मिलियन का, किसके द्वारा दिया गया है ये लोन, ये दिया गया है आपका, बताइए किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। राइट, $300 मिलियन का लोन है, ठीक, वर्ल्ड बैंक ने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया, ताकि तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को यहाँ पे ग्रो करा जा सके। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, इन्होंने अभी एक नया ऑफिशियल लोगो, जर्सी एंड थीम सॉन्ग लॉन्च किया है 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में होंगे। पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो क्या रहेगा मैस्कॉट, वो है वीरा मंगाई रहेगा। राइट, अब्दुल फतेह अल सीसी ये अभी रिलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ, ये कहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे, तो ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट रिलेक्ट किए गए हैं फॉर द 3rd टर्म।
इसी के अलावा अगर कुछ और क्वेश्चन पूछूं फ्रेंड्स आपसे, जैसे बताओ 18 दिसंबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? माइनॉरिटी राइट्स डे। 18 दिसंबर को ही हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। 19 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं गोवा लिबरेशन डे। 21 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, और ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया है अभी 2023 में। फिर 22 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, एस रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी पर। नेक्स्ट है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस प्रहलाद जोशी, इन्होंने एक नेशनल जियोसाइंस डाटा रेपोजिटरी एनजीडीआर पोर्टल को अभी यहाँ पे लॉन्च किया एंड एक रोड शो भी कराया क्रिटिकल मिनरल्स का इन न्यू दिल्ली, राइट। तो यहाँ पे आर की इनडायरेक्टली फुल फॉर्म ही पूछी गई थी एनजीडीआर की, तो आर क्या रहेगा? रेपोजिटरी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो एनजीडीआर है ना, ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। Next, which of the following companies does not receive the RBI's approval to operate as a payment aggregator in December 2023? तो ये चारों रेजर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड नेहा टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इन चारों को यहाँ पे अभी पेमेंट एग्रीगेटर का भी अप्रूवल मिला आरबीआई से, बट इजी बस प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे ये अप्रूवल नहीं मिला है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया जिनको भी रिसेंटली ऑनर किया गया छठे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से फॉर द बुक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ये सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स इस बुक के लिए छठे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से किनको सम्मानित किया गया, और वो इंडियन है। क्या नाम रहेगा उनका? वो है सुकृता पॉल कुमार, ठीक है। और इनको यहाँ पे $10,000 का कैश प्राइज भी दिया गया है। नेक्स्ट, इसरो ने अभी 9वां एडिशन ऑफ द लीफ एरिक्सन अवार्ड को जीत लिया फॉर देयर मिशन डैश। ये लीफ एरिक्सन मिशन है कि जो एक आउटस्टैंडिंग मिशन होता है, राइट, जिसको एक क्यूरोसिटी जगती है एंड काफी कुछ एक्सप्लोर करने को भी मिलता है, उसलिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 9वां एडिशन था, इसरो के द्वारा दिया जाता है। चंद्रयान 3 को यहाँ पे इस अवार्ड से अभी सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉन इन एज द 17th एमिर ऑफ कुवैत। तो 17वें एमिर कौन बने हैं कुवैत के? वो है शेख महशाल अल अहमद अल जबैर अल सबा। तो चौथा ये आंसर यहाँ पर आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट, पद्मा भूषण अवॉर्डी डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, ये एक इंडियन वीमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं एंड फॉर्मर चेयर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया दिसंबर में। इन विच ईयर डिड शी रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। तो किस साल में इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2007 में इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था, और किस फील्ड में? सोशल वर्क कैटेगरी में इनको पद्मा भूषण दिया गया था। विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो आप यहाँ पे देखते होंगे नीचे आता है एकदम स्कैन का बटन जिससे आप पेमेंट करते हैं, तो उसके जस्ट साइड में राइट में आपको दिखेगा ONDC लिखा हुआ। ये आपका उस प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, उस पेज पे चला जाता है जहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ पर बिक रहे होते हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं। एंड उन्हीं जो प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं, उन MSMEs को, उन बिजनेसेस को, उन स्मॉल बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए यहाँ पर अभी मेटा, जिसको हम पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, ये हेल्प करेंगे इनको। एंड नॉट जस्ट मेटा अभी कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा भी आप देखेंगे मेटा का जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है वो अपने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को ग्रो कर रहे हैं एंड जो MSMEs हैं अक्रॉस इंडिया उनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं ताकि वो उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके ग्रो कर सकें। इनके द्वारा व्हाट्सएप बिजनेस भी लॉन्च किया गया, और हम जानते हैं व्हाट्सएप भी फेसबुक के द्वारा ही एक्वायर किया हुआ प्लेटफॉर्म है। उद्यम सखी पोर्टल यह भी डेवलप किया गया इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर आती है, ठीक है। उद्यम सखी पोर्टल जो कि IDEMI के द्वारा डेवलप किया गया था, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 5th एडिशन ऑफ लीड्स सर्वे रिपोर्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इनके मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च की गई। अगर यहाँ पे देखें तो सारे ऑप्शन ABC तीनों आपके बिल्कुल सही रहेंगे। 13 स्टेट्स, जो जिसमें 11 स्टेट्स एंड 2 UTs आ जाती हैं, इनको कैटेगराइज किया अंडर द अचीवर्स इन द लीड्स सर्वे रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इनको कैटेगराइज किया एज अचीवर्स अमंग द कोस्टल स्टेट्स। एंड हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना एंड UP, इनको कैटेगराइज किया एज अचीवर्स अमंग द लैंड लॉक स्टेट्स इन दिस 5th एडिशन ऑफ लीड्स सर्वे रिपोर्ट। Which bank has recently entered into a corporate agency agreement with HDFC Life to offer life insurance product to their customers? It is Karur Vasai Bank, right? Karur Vasai Bank entered into a corporate agency agreement with HDFC Life to offer life insurance products to their customers. Correct? Next, and there is a target of IRDAI to provide insurance to all by
2047. Next, name the life insurance that has recently entered into a bancassurance partnership with IDFC First Bank Limited to offer insurance solutions to the bank's customers. It is Aditya Birla Sun Life Insurance. Right? They have recently entered into a bancassurance partnership with IDFC First Bank Limited to offer insurance solutions to the bank's customers. Next, which of the following personalities from India have recently won International Hockey Federation's Men's Player of the Year and the FIH Women's Goalkeeper of the Year award respectively at the 2023 FIH Annual Hockey Star Awards? So if we talk about the men's, FIH Player of the Year award was awarded to Hardik Singh and Women's Goalkeeper of the Year award was awarded to Savita Punia. So right option here becomes option 2. Next, in December, Sandeep Batra was reappointed as the Executive Director of Dash Bank. So, remember, Sandeep Batra was appointed as the Executive Director of ICICI Bank. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिसेंटली फॉर्म्ड अ कमिटी जो कि हेड की जाएगी सीआरपीएफ के द्वारा. राइट, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के द्वारा. क्या नाम रहेगा उनका? करेक्ट, जो कि पार्लियामेंट अभी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, पार्लियामेंट में 2 लोग आ गए थे और गैस के गोले भी उन्होंने फेंक दिए थे. तो उस सिक्योरिटी ब्रीच को एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई जो कि हेड की जाएगी बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ जो है अनीश दयाल सिंह. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.